further, over here, see, I was talking to you about electron gain enthalpy. During electron gain enthalpy, the electron is completely added to fluorine or chlorine atom, and they have been converted to fluoride or chloride ions. Now we are going to see one more concept which is little bit different but still similar. Electronegativity. See the difference over here. In electronegativity, suppose there is a bonding is taken place between two atoms like chlorine and chlorine, and they are sharing a pair of electrons. They are sharing one electron each. तो पेयर ऑफ दोनों के बीच में शेयर हो रही है. अगर ये दोनों एटम सिमिलर है लाइक क्लोरीन क्लोरीन या तो फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन नो इश्यू, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं होती है. दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज बीइंग शेयर्ड, वो दोनों के एग्जैक्टली बीच में रहती है. रीजन क्या है? बिकॉज both the atoms which are taking part in bonding, they are equal. They have equal number of protons, they have equal number of electrons, they have equal number of neutrons. But when we talk, two different atoms are sharing electron pair like hydrogen and chlorine. They are sharing electron pair. At that time, hydrogen has different number of protons than chlorine. Hydrogen has less number of protons than chlorine. In another way, here hydrogen, when they share this electron, जब हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, उस टाइम पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन पे, सो क्लोरीन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करता है. दोनों के न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करते हैं. जस्ट बॉन्डिंग हैज टेकन प्लेस. यहाँ पे भी ऐसा था, क्लोरीन क्लोरीन की ओर से अट्रैक्ट किया जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन की ओर से अट्रैक्ट किया जाएगा. बट इन दोनों में फर्क ये था कि दोनों एटम होने की वजह से जो अट्रैक्शन साइड से हो रहा था वो इक्वल हो रहा था. दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन इन मिडल ऑफ बोथ ऑफ देम. बट दिस टाइम जब अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा. सिंस बोथ ऑफ देम दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, both of them they have different number of protons, attraction is different. Chlorine has higher number of protons, so higher effective nuclear charge than hydrogen. Hydrogen has only one proton. So chlorine जो होगा ये bonded electron pair को ज्यादा अपनी ओर खींचता है. So normally rather drawing like this, we will draw electron pair lying more towards chlorine, बिकॉज क्लोरीन ने खींचा है ज्यादा. अभी भी शेयरिंग हो रहा है, याद रखना. दोनों ये इलेक्ट्रॉन को शेयर जरूर कर रहे हैं, बट क्लोरीन ने ज्यादा अपनी ओर रखा है. इट इज नॉट लाइक दिस. सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने गेन किया, ये डिफरेंट फिनोमिनन है. यहां पे वन ऑफ द एलिमेंट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन इज गेनिंग इट. It's gaining completely. In this case, it was not lost. माफ करना. Hydrogen has not lost the electron. It is still sharing. अभी भी वो पकड़ के रखा है. क्लोरीन और हाइड्रोजन में जो शेयरिंग हो रहा है, फर्क इतना है कि क्लोरीन ने थोड़ा अपनी ओर खींच रखा है. दिस खींचने वाला फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Let me explain you the other way. See over here, it depends. In both the cases, electron was being pulled by chlorine. But in this case, electron was completely pulled. So that was electron gain. Here, electron was being pulled by chlorine, not completely. Still, hydrogen and chlorine are sharing. So this phenomenon of pulling electron towards itself. Which electron? Which was bonded and which was shared. The phenomenon is in which bonded shared electron pair pulling towards is known as electronegativity. दोनों सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है.
difference. Don't get confused. Electronegativity is pulling a bonded electron pair towards itself. Electrogain is completely gaining of electron. When electron is gained, energy is exchanged. That exchange of energy is known as electron gain enthalpy. वो एनर्जी थी, यहाँ पे एनर्जी कोई एक्सचेंज नहीं होने वाली, इट्स जस्ट बीइंग पुल्ड. दैट टेंडेंसी, खाली खींचने की जो टेंडेंसी, उसमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. डिफरेंस समझ में आ रहा है? आर यू फॉलोइंग दिस? ओके, बाकी सब कंसेप्ट सेम रहेंगे. लाइक इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, normally left to right, okay, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती. टॉप टू बॉटम, okay, size increases, electron attraction decreases, so electronegativity decreases top to bottom. One more point, okay, I need to mention is that electronegativity is a relative tendency. It is a relative tendency. Relative का मतलब क्या, मैं समझाता हूँ आपको, आप जरा समझिए. ओके, यू नो दिस टू एक्टर, उसके पूरे दोनों के स्पेल मुझे नहीं आते, खाली लिख रहा हूँ. एक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड दूसरा है सलमान खान. ओके, नहीं किसी को बुरा लग जाएगा, कोई उसका बड़ा फैन होगा. ओके, कोई बोला यहाँ पे शाहरुख खान लगा दो. ओके, अभी इन दोनों के बीच में हमने एक आइसक्रीम का कप रख दिया, 2 रख दिए, चलो. अब जिसके पास ज्यादा ताकत वो खींच लेगा. कौन खींचेगा? ऑब्वियसली की बॉडी ज्यादा, सलमान खान. कौन फिजिकली फिट? सलमान खान. कौन हैंडसम दिखता है? सलमान खान. ओके, सलमान खान के फैन तो हर एक चीज. एनीवे, सो वी नो, फिजिकली कंपैरिजन करेंगे, सलमान खान इज प्रॉपरली फिट एंड बोल्ड. इन दोनों की कंपैरिजन करते, बराबर है. अच्छा, अभी यही सलमान खान खली के साथ कंपेयर करेंगे. ओके, और कौन फिजिकली फिट? ओके, सलमान खान के फैन तो सलमान खान, कुछ भी हो जाए सलमान खान. ओके, ऐसा नहीं है यहाँ पे. इट डिपेंड्स, आप किसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हो यार. इस रिलेटिव. सेम सलमान जो इसके सामने एकदम हट्टा कट्टा, इसके सामने. ओके, इफ यू हैव सीन दैट बिग बॉस का एक एपिसोड था, खली और सलमान खान दोनों आए थे. ओके, देखा है, आज से एक 1.5 साल पहले आया था. तब अगर सलमान खान ऐसे देख के बात कर रहा था खली के सामने, सर व्हाट डू यू वांट टू हैव. ओके, एनीवे, ओके, सो आर यू फॉलोइंग मी? रिलेटिव इज ऑलवेज किसके साथ किसको कंपेयर कर रहा हूं. देखो, अगर आप बात करते हो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं NH3 के फॉर्म में. कौन से फॉर्म में? और तीनों के तीनों बॉन्ड को नाइट्रोजन खींचेगा अपनी ओर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है. बट वही नाइट्रोजन जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन नाइट्रोजन से 3 बार बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचता है. इट इज अ रिलेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज रिलेटिव. कौन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो ज्यादा पुल करेगा. लेकिन सर कैसे पता चले किसकी ज्यादा किसकी कम? तो उसके लिए पहली चीज तो ये याद रखनी है कि भाई लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज डिक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज इंक्रीज होती है, अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. ये सिंपल ट्रेंड. तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे जब नाइट्रोजन के साथ कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे है, नाइट्रोजन राइट हैंड साइड पे. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए जब NH3 का बॉन्ड हमने बनाया तो NH3 के बॉन्ड में नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पुल किया था फ्रॉम हाइड्रोजन.
करेक्ट और नॉट। बट जब हमने बात की नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन की, फ्लोरीन राइट हैंड साइड पे, फ्लोरीन राइट हैंड साइड पे, तो जब फ्लोरीन राइट हैंड साइड पे है तो फ्लोरीन गेन करेगा, तो फ्लोरीन गेन करने वाला। इट डिपेंड्स किसके साथ किसको कंपेयर कर रहे हो। ओके, बाय द वे और बेटर एक तरीका दिया गया है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, वो बात बिल्कुल सही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इसका सबसे ओके, इन सबको इंटरेस्ट ही नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने में, वो बॉन्ड ही नहीं, बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेंगे ना, करेक्ट है ना। इन सबको इंटरेस्ट नहीं है, वो अकेले ही अच्छे, दे डोंट मेक एनी बॉन्ड, इनर्ट है, लेजी है। एनीवे, इनर्ट का ट्रांसलेशन लेजी होता है, मालूम है ना, मैं बताया आपको शायद कई बार। ओके, सो ये सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बन जाएगा, ये सबसे लीस्ट बनेगा, सबसे लीस्ट। इनको इंटरेस्ट नहीं, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में ज्यादा मगजमारी करते हैं। एनीवे, सेकंड थिंग, ये सबसे लीस्ट तो है बट टॉप टू बॉटम और डिक्रीज होता जाता है। तो लिस्ट में लिस्ट, द मोस्ट लिस्ट, मोस्ट लिस्ट बोलते हैं, इज इट करेक्ट वे टू से? लिस्ट इज द आई थिंक टॉप मोस्ट। ओके ओके okay, the least electronegative element out of all of them is cesium. Cesium सबसे, okay, it has lowest electronegativity, and francium has, माफ करना, francium doesn't have any electronegativity. francium जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी केमिस्ट्री ही अलग होती है, हम नॉर्मल के बारे में बात नहीं करेंगे उसमें। एंड एज फार एज फ्लोरीन, ये ग्रुप हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें भी फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड कौन? फ्लोरीन। एंड उन्होंने क्या किया है, यार आपकी बुक में से पढ़ाई करते हैं, काफी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई की आपकी बुक में से। यस रीड, the ability of an atom in a chemical compound to attract said electron of bond towards itself is known as electronegativity. It is not possible to measure its absolute value. Absolute का मतलब होता है सिंगल, आप अकेली वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इट इज सपोज टू बी ऑलवेज रिलेटिव, किसी के रेफरेंस में ही फाइंड की जाती है। अनलाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, अकेले ही फाइंड कर सकते हो। अच्छा, एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डज नॉट डिपेंड। अच्छा, जब मैंने बताया फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समथिंग है, इट डज नॉट डिपेंड कौन उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। याद रखना, अगर सोडियम ने रिलीज किया इलेक्ट्रॉन और उसने गेन किया, उस टाइम पे लेट से के एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल रहा है। पोटेशियम ने रिलीज किया और वो गेन किया, तो उस टाइम पे भी उतनी ही निकालेगा। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, सीजियम ने रिलीज किया और गेन किया इसने, उस टाइम पे भी इतनी ही निकालता है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस ये इलेक्ट्रॉन कहां से गेन हुआ, रिगार्डलेस ऑफ सोर्स। इट्स एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीवन एल्स, इट जस्ट डिपेंड्स कि उसको गेन करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इलेक्ट्रॉन एब्सोल्यूट वैल्यू, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा नहीं था। नेगेटिविटी में डिपेंड्स कौन किसके साथ कंबाइन हो रहा है। नाइट्रोजन, सेम नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से पुल करेगा, फ्लोरीन को देगा। It's relative. Negativity is relative. Although many numerical scales, okay, अभी मेजर करने के लिए स्केल बनाए गए, काफी सारे बनाए गए, बट उसमें से जैसे कि स्केल है, अल्फ्रेड
ओके, रोचोव स्केल है, बट आउट ऑफ दिस पॉलिंग स्केल इज वाइडली यूज। उसमें उन्होंने क्या किया, लिनस पॉलिंग ने काफी सारे स्टडी के बाद उन्होंने नक्की किया कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 1 ले लेंगे। क्या करेंगे, 1 यूनिटी। उसके बेस पे बाकी को कंपेयर करते, और उन्होंने कंपेयर किया, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, फ्लोरीन से क्लोरीन डिक्रीज हो रहा है। बाय द उसके हिसाब से सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीजन है 3.5, देन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन है, देन कार्बन एंड ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर है। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस, आपकी बुक में आप ये रीड करोगे क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। See, if we move in a group also, top to bottom, electronegativity decreases. Cesium is the least electronegative element. We talked about that. And यहाँ पे लिखा गया है, we know that the non-metallic elements have strong tendency to gain electron. Non-metallic होते हैं, उनकी tendency electron gain करने की ज्यादा है। Thus, there is a direct relationship of electronegativity. जितने non-metallic है, they are highest electronegative element, like halogen. And जितने metals है, वो least negative है। मतलब metallic nature is inversely proportional to electronegativity. Electronegativity उतना नॉन मेटल ज्यादा हो गया, एंड जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस उतना अच्छा। इज दिस फाइन, वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, कंक्लूजन लेके आते हैं। आई थिंक सो आई टोट यू 5 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एटॉमिक रेडियस, सेकेंड थी आयनिक रेडियस, थर्ड थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड फिफ्थ हमने देखा, बराबर। तो उन सब का जो ट्रेंड्स है वो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। देखो, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस जो होगा लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस को एरो इस तरफ बताया गया है। यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी का एरो जिस तरफ बताया गया उस तरफ वो बढ़ता है। मतलब एटॉमिक रेडियस राइट टू लेफ्ट बढ़ता है, उसका एरियो जो एरो है वो बताया गया टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब टुवर्ड्स दैट साइड इज इंक्रीजेस। टुवर्ड्स लेफ्ट एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एंड टुवर्ड्स डाउन फ्रॉम इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। इज दिस फाइन? पहला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? एटॉमिक रेडियस को छोड़ दो, बाकी सब राइट टू लेफ्ट जाते, माफ करना, लेफ्ट टू राइट जाते हो, बाकी सब चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में ऑलवेज इंक्रीज। वो सब की सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस है, बिकॉज एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, अब इंक्रीज होंगे। सेम वे अगर आप बॉटम टू टॉप जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, बॉटम टू टॉप इंक्रीज होता है, एंड एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। बस एक ही सही है। और एक चीज याद रखना, डायगोनली जितना आप आओगे तो ये मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहे थे। टॉप टू बॉटम मेटल बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बिकॉज टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। तो हमको पता है ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप काफी अच्छा मेटल है, ये वाला ग्रुप। लेकिन इसमें सबसे अच्छा मेटल कौन सा? इनफैक्ट इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा ध्यान से देखना, मस्त क्वेश्चन, जरा देखना। आउट ऑफ द फॉलोइंग which is best suitable metal for photoelectric effect?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो आपको दिया गया है, एक दिया है जिंक, कोबाल्ट, सोडियम, मैग्नीशियम, सीजियम, कॉपर। इन सब में सबसे अच्छी कौन सी है? वाई सीजियम। इट विल इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले देखो दो चैप्टर कंबाइन किए गए। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? आपके पास कोई मेटल होती है, मेटल के ऊपर जब लाइट डालते हो तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होना चाहिए। दैट इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक, चैप्टर नंबर 2, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो इजीली निकाले वो अच्छी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल होगी। ओके, सीजियम। अब अभी देखो जिंक कोबाल्ट मैंने जो आपको दिए वो दोनों डी ग्रुप की मेटल है। जिंक यहाँ पे है, कोबाल्ट यहाँ पे। फिर एक मैग्नीशियम दिया था, एक कॉपर दिया गया था, सोडियम दिया गया था और सीजियम दिया गया था। ग्रुप 1 के अच्छे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी लिस्ट है, इजीली निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। और सबसे इजीली कौन निकालेगा? सीजियम। ऐसा कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, बट कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया तो साबु वापरो थोड़ो। वी हैव टू यूज अवर कॉमन सेंस यार, करेक्ट है ना?